أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس کے اندر میں جیسا کہ اگلی مجلسوں کے اندر میں عرض کیا گیا تھا، یہ جو مضامین چلتے ہیں یہ توحید، رسالت، عالم برزخ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت، جہنم، حساب اور کتاب، یہ سارے مضامین ہوا کرتے تھے مکی صورتوں کے اندر میں اور مکی آیتوں کے اندر میں. یہ سورہ یونس بھی مکی ہی ہے. توحید اور رسالت وغیرہ کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا پھر تذکرہ فرماتے ہیں. جو مکہ کے مشرکین اور کفار جس کو مانتے نہیں تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ان کا ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جمع کرے گا، میدان حشر کے اندر میں جمع کرے گا. حشر کا معنی ہی ہے جمع ہونا، جمع کرنا. یحشرہم، محشر، میدان حشر کہتے ہیں. کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، ایسا لگے گا کہ وہ دن کی ایک گھڑی کے برابر ٹھہرے. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کھڑے بھی رہیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین جس نے اختیار نہیں کیا، خسرہ، وہ نقصان میں پڑ گیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اس کی تفسیر کے اندر میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ میدان حشر میں جب کافرین اور مشرکین کو جمع کیا جائے گا
तो दुनियावी ज़िंदगी जो है या आलम बरज़ख वाली ज़िंदगी, आदमी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल होने से लेकर क़यामत का दिन जो है ये आवे, वहाँ तक के ज़माने को आलम बरज़ख कहते हैं। तो गोया आदमी जब मैदान हश्र के अंदर में खड़ा होगा तो उस दिन की सख्ती और हौलनाकी और उस दिन के ख़तरनाक और भयानक होने की वजह से वो दिन भी बहुत लंबा लगेगा, बहुत बड़ा और बहुत लंबा लगेगा। बाज़ आयतों के अंदर में आया कि 1000 साल के बराबर होगा, और दूसरी आयतों के अंदर में आया कि 50,000 साल के बराबर होगा। इतना दिन लंबा लगेगा। अब एक दिन की मिक़दार जब 1000 साल के बराबर हो या 50,000 साल के बराबर हो, तो इसके मुकाबले के अंदर में दुनियावी ज़िंदगी की क्या हैसियत। 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल। अगली उम्मतों के अंदर में उम्र ज़्यादा थी, उनके यहाँ बच्चा 300 साल की उम्र में बालिग होता था, और 2000, 2500, 3000 तक की उनकी उम्रें थी। इस उम्मत की उम्रों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70। मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो 60 से लेकर के 70 तक है। ये इस उम्मत की उम्रें हैं। आम तौर पर मैं इस पर ये कहा करता हूँ कि 60 साल गारंटी और 70 साल वारंटी। 60 से लेकर के 70 साल गारंटी और वारंटी। 70 साल के बाद में कोई गारंटी भी नहीं और कोई वारंटी भी नहीं। तो ये 60-70 साल की ज़िंदगी 50,000 साल के मुकाबले में या 1000 साल के मुकाबले में ऐसी लगेगी कि आदमी दुनिया को छोड़कर मैदान हश्र के अंदर में पहुंचा तो ऐसा लगेगा कि दिन का एक थोड़ा सा हिस्सा, साअतन मिनन नहार, साअतन घड़ी को कहते हैं और साअतन घंटे को कहते हैं, यानी एक घड़ी, दिन की एक घड़ी दुनिया के अंदर में रह करके आया। और दूसरा मतलब उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आलम बरज़ख का जो ज़माना है, आदमी के मरने से लेकर के क़यामत का दिन आएगा, वहाँ तक का जो कब्र का ज़माना कहो या आलम बरज़ख का ज़माना कहो, ये मैदान हश्र के अंदर में ऐसा लगेगा कि गोया कब्र के अंदर में दिन की एक घड़ी या दिन का एक हिस्सा या एक घंटा हम ठहर करके आए। यतआरफ़ून बैनहुम, मैदान हश्र के अंदर में बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा लिखा है कि मैदान हश्र में जब लोग जमा हो रहे होंगे तो दुनिया के अंदर में जो रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, जान पहचान वाले होंगे, अब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से लंबे ज़माने के बाद में मिले, या एक दोस्त दूसरे दोस्त से लंबे ज़माने के बाद में मिले, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, साथ के अंदर में पढ़ते थे या स्कूल के अंदर में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में मुलाकात हुई, किसी ने बताया कि फलाना तुम्हारा क्लास फ्रेंड है या फलाना तुम्हारा दोस्त है, बचपन की हालत के अंदर में देखा था और बड़ी उम्र हो गई, दाढ़ी आ गई या दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, तो एक दूसरे को जान पहचान करने के लिए खड़े रहते हैं कि आप ये हैं और आपका नाम ये है, आप फलानी क्लास में पढ़ते थे, तो क्या हाँ, तो क्या फलाने को पहचानते हैं, तो क्या हमारा वो दोस्त है, क्या आप क्या पहचानते थे कि नहीं, तो कि मैं ही हूँ। इस तरीके से एक दूसरे का जान पहचान और तारुफ होता है। यतआरफ़ून बैनहुम, मैदान हश्र में जमा होने से पहले एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, एक दूसरे का तारुफ कराने के लिए, जान पहचान कराने के लिए। इसके अंदर में रिश्तेदार भी आ गए, दोस्त अहबाब भी आ गए, जानने पहचानने वाले सब आ गए। क़द ख़सिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन, नुकसान में पड़ गई वो लोग
जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाया, वमा कानू मुहतदीन, और न उनको हिदायत दी गई। यहाँ तक तो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मामला अगरचे ख़तरनाक होने के बावजूद एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, लेकिन जब मैदान हश्र के अंदर हिसाब किताब और सारा मामला ख़तरनाक जब शुरू हो जाएगा तो इसका तज़किरा दूसरी जगहों में कुरान पाक के अंदर में तज़किरा बयान फरमाया है। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी, कि उस दिन जो है इंसान अपने भाई से और अपने बाप से और अपनी माँ से और अपनी बीवी से और अपने दोस्त वगैरह सबसे भागेगा। दो किस्म का तज़किरा आता है कि जब हालात ख़तरनाक हो जाएंगे तो फिर भागेंगे, और भागना इसलिए होगा कि आदमी को ज़रूरत पड़ी नेकी की, आदमी खुद मोहताज है एक नेकी का, एक नेकी के ऊपर में फ़ैसला हो सकता है जन्नत का। अब उस नेकी को तलाश करने के लिए निकलेगा तो हर आदमी अपनी परेशानी की हालत के अंदर में नेकियों को तलाश करेगा, इसलिए हर रिश्तेदार और हर दोस्त और पक्का दोस्त जो एक दूसरे से भागेंगे। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, नुकसान के अंदर में पड़ जाएंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाया, वमा कानू मुहतदीन, और न तो उनको हिदायत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और एहतराम की वजह से उम्मत के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने उमूमी अज़ाब नाजिल नहीं फरमाया। आगे वाली आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अज़ाब की जल्दी मचाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते हुए, इस्तिहज़ा मजाक और ठट्ठा उठाते हुए कहते थे कि अगर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने वाला है तो कब आएगा, क्यों नहीं आता है अज़ाब। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अज़ाब तो क्या, अज़ाब से पहले की जो चीज़ें हैं, यानी अज़ाब के आने से पहले जो निशानियों के तौर पर जो चीज़ें होती है, अगर ये चीज़ें अगर हम दुनिया के अंदर में उनको बतला दें तो हम कादिर मुतलक हैं, बतला सकते हैं। वइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम, और अगर हम आपको बतलावें, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं वइम्मा नुरियन्नका, अगर हम आपको बतलावें बअदल्लज़ी नइदुहुम, बाद वो चीज़ें जिनका हम उनको वादा करते हैं, यानी मक्का के और मुशरिकीन और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ था। वादा खिलाफ़ी करना अच्छा नहीं है और अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। ईमान लाओ नहीं तो अल्लाह के अज़ाब के अंदर में मुब्तला हो जाओगे, ये अल्लाह का वादा था। अब ये अज़ाब या तो दुनिया के अंदर में आवे, या अगर दुनिया के अंदर में अल्लाह ताला अज़ाब को मौखर कर दे, लेट कर दे, तो आखिरत के अंदर में तो यकीनी है। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर में फरमाया कि वइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम, अगर हम आपको बतलावें बाज़ वो चीज़ें जिनका हमने उनको वादा कर रखा है, औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको वफ़ात दे दें, तो हो सकता है कि अज़ाब तुम्हारी हयाती के अंदर में, तुम्हारी हयात और ज़िंदगी के अंदर में आवे, या अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दें और आपकी वफ़ात के बाद में उनके ऊपर में अज़ाब आवे। बहर के दोनों शक्लों में और दोनों सूरतों के अंदर में फ़इलैना मरजिउहुम, उन तमाम का, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का हमारी ही तरफ वापस लौटना है। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह तबारक व तआला गवाह होगा, गवाही देगा उन तमाम आमाल की जिनको ये लोग दुनिया के अंदर में करते थे। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो भी शिरक और कुफ्र करते थे, अल्लाह तबारक व तआला खुद गवाह है। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल,
यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अम्बिया अलैहिस्सलाम आए या इस उम्मत से पहले जो उम्मतें आई, इनका अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में तज़किरा फरमाया। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल होता था, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, या हर उम्मत के लिए एक रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, फिर जब उनके पास में उनका रसूल आ गया, क़ुज़िया बैनहुम बिल क़िस्ति, तो उन उम्मतों के दरमियान में इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया गया। पहले भी मैं 2-3 मरतबा बता चुका हूँ कि अगली उम्मतों पर जब तक रसूल नहीं आए, नबी नहीं आए, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाया। रसूल को भेजा, किताबें उतारी, नाफरमानी हुई, रसूल की नाफरमानी, किताबों की नाफरमानी, अल्लाह का इनकार, रसूल का इनकार, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो है अज़ाब नाजिल फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और एहतराम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाया। और उम्मत दावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले नहीं हैं, इनकार करने वाले हैं, इनके ऊपर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाजिल नहीं फरमाया। तो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किसी भी कौम के पास, किसी भी उम्मत के पास जब अल्लाह की तरफ से रसूल आ गया और रसूल ने अल्लाह के अहकाम को बतलाए और फिर जब इनकार कर दिया, तो क़ुज़िया बैनहुम, उनके दरमियान के अंदर में फ़ैसला कर दिया गया कि ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने नजात अता फरमाई, और जो काफिर और मुशरिक थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगले मज़मून की तरफ वापस लौट करके मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार की बात बयान फरमाते हैं। वयक़ूलून, और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कहते हैं, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कहा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब तुम करते हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब उतरेगा। मता हाज़ल वादु, ये अल्लाह का वादा कब पूरा होगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे के अंदर में सच्चे हो। ज़ाहिर बात है कि अज़ाब का उतारना, किसी को माफ़ कर देना और किसी को सज़ा के अंदर में मुब्तला कर देना, या दुनिया के अंदर में अज़ाब को मौखर कर देना, आखिरत के अंदर में अज़ाब देना, या आखिरत के अंदर में भी अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, ये सारा इख्तियार जो है अल्लाह तबारक व तआला का है। ये इख्तियार न किसी रसूल को अल्लाह ताला ने दिया, और ये इख्तियार न किसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। तो जब मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने जल्दी मचाई, वयक़ूलून, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कहते हैं, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम अपने दावे के अंदर में सच्चे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को कह दो, ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा, मैं अपनी ज़ात के लिए न तो नुकसान का मालिक हूँ और न तो अपनी ज़ात के लिए नफ़े का मालिक हूँ। यानी मेरे इख्तियार के अंदर में ना मेरी ज़ात पर अगर तकलीफ़ देने वाली चीज़, नुकसान देने वाली चीज़ अगर आ जावे तो उसको मैं दूर नहीं कर सकता, और कोई नफ़ा की चीज़ है तो उस नफ़ा की चीज़ को मैं हासिल नहीं कर सकता। नफ़ा अल्लाह के हाथ में है और नुकसान ये भी अल्लाह के हाथ में है। तो ज़ाहिर बात है कि जब नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, तो अज़ाब उतारने का मालिक भी अल्लाह है। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे इख्तियार की बात नहीं है कि मैं जो तुम अज़ाब के लिए जल्दी मचाते हो उस अज़ाब को मैं उतारूँ। कुल, कह दो, ला अमलिकु लिनफ्सी
ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह, कह दो कि मैं अपनी ज़ात के लिए न नुकसान दूर करने का मालिक हूँ और न नफ़ा हासिल करने का मालिक हूँ, इल्ला मा शा अल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई वक्त मुतय्यन होता है। दावत और तबलीग का मेयार ये अल्लाह ताला के यहाँ मुतय्यन होता है। कुफ्र और शिरक, जुल्म और नाफरमानी का मेयार अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुतय्यन होता है। दावत और तबलीग का मेयार जब ख़त्म हो जाता था और नाफरमान कौमों और उम्मतों का जुल्म और सितम और इनाद और कुफ्र और शिरक का मेयार जब ख़त्म हो जाता था तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आता था। लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई वक्त मुतय्यन था। इदा जाअ अजलुहुम, उम्मतों के पास में जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाता, फला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, तो एक घड़ी ना पीछे हो सकते और न एक घड़ी आगे हो सकते थे। तो अज़ाब का उतारना ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत के अंदर में है, और ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरीन और मुशरिकीन को दुनिया ही के अंदर में अज़ाब दे। अल्लाह तबारक व तआला ढील दे दे और आखिरत के अंदर में उसको अज़ाब के अंदर में मुब्तला कर दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो अज़ाब के उतारने की जल्दी मचाते हैं, उनसे फिर पूछो, कुल पूछो, कहो, अरअयतुम, मुझे ज़रा बताओ, इन अताकुम अज़ाबुहु, अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब आ जाए, बयातन, रात के वक्त के अंदर में, अगली उम्मतों के ऊपर में अज़ाब आया, रात के वक्त में आया, लोग गफलत की नींद सोए हुए थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार से कहो कि अगर अल्लाह का अज़ाब ऐसे वक्त के अंदर में आवे कि रात के वक्त के अंदर में सारे लोग गफलत की नींद सोए हुए हों, उस वक्त के अंदर में अगर अल्लाह का अज़ाब आवे, और नहारन, या दिन के वक्त के अंदर में जबकि कामकाज और तिजारत और खेती बाड़ी और अपने मशगले के अंदर में मशगूल हों, ऐसे वक्त के अंदर में अगर अल्लाह ताला का अज़ाब आ जावे, मादा यस्तअजिलु मिन्हु अल मुजरिमून, तो ये गुनहगार अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की जो जल्दी मचाते हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। अगर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा तो इसको कोई दूर करने वाला नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा और उससे क्या उनको नफ़ा हासिल होगा। असुम्मा इदा मा वक़अ, फिर जब अल्लाह का अज़ाब उतर आवे, आ जावे, आमनतुम बिही, फिर तुम ईमान लाओगे। ईमान लाना तो उस वक्त के अंदर में है जबकि गैप के ऊपर में जो चीज़ें गैप के अंदर में है और उस पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो ज़ाहिर न हुए, वहाँ तक ईमान मातबर है। इसीलिए फ़िरौन जब डूबने लगा था तो उस वक्त के अंदर वो ईमान लाया कि मैं मूसा और हारून के रब पर मैं ईमान लाता हूँ। हत्ता इदा अदरकहुल गरक, जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं मूसा और हारून के रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल आन, कि अब यानी ज़ाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ गया और बातिनी चीज़ें जो है उस पर जो आग पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा हट गया, उस वक्त के अंदर में तो ईमान लाता है, तो ऐसा ईमान मोतबर नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई काफिर और मुशरिक है, जान कनी की हालत में, सकरात की हालत के अंदर में, जब ज़ाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ जाए और आज जो बातिन पर पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट जाए और फिर वो ईमान लावे, तो उसका ईमान भी मोतबर नहीं है। ये तो इनफरादी तौर पर है। और क़यामत से पहले जब सूरज मगरिब की जानिब से निकलेगा तो अमूमी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। गुनाहों से तौबा ये भी माफ़ नहीं, और कुफ्र और शिरक से अगर आदमी तौबा करेगा वो भी माफ़ नहीं। इसीलिए आता है कि मन मात फ़कत क़ामत क़यामत हो, जो आदमी मर गया तो उसकी क़यामत चालू हो गई, उसकी क़यामत शुरू हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि असुम्मा, क्या फिर, इदा मा वक़अ, जब अज़ाब आ जाएगा, उतर पड़ेगा, आमन तुम भी,
उस वक्त में तुम ईमान लाओगे। आल आना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि अब वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून, इसी अदाब की तुम जल्दी मचाते थे। जब अदाब उतर आया तो पता चला कि अदाब किस शक्ल के अंदर में होता है और किस तकलीफ दे शक्ल के अंदर में होता है। सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी, फिर कहा जाएगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, यानी कुफ्र किया, शिरक किया, दुनिया के अज़ाब से अगर बच भी गए तो आखिरत के अज़ाब के अंदर में जब अल्लाह तबारक व तआला उनको मुब्तला करेगा तो फरिश्तों की तरफ से कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की मारिफत कहलवाएगा कि चखो, ज़ूक़ू चखो, अज़ाबल खुल्दी, ये हमेशा का जो अज़ाब है ये चखो। हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा अमल करता है उसी अमल की बकदर उसको सज़ा दी जाती है। आदमी को गुनाह से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती। हल तुजज़ौना, सज़ा और बदला नहीं दिया जाता है, इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, मगर इतना जितना कि तुम दुनिया के अंदर में अमल करते थे। वयस्तंबिऊनका अहक्कुन हुवा, और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, अहक्कुन हुवा, ये जो अज़ाब है, अज़ाब का जो तज़किरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं ये सच्ची बात है। अहक्कुन हुवा, ये हक है कि अगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। अहक्कुन हु, कुल जवाब दे दो, ई हाँ, वरब्बी, मेरे परवरदिगार की कसम, इन्नहु लहक्कुन, बेशक वो अलबत्ता बरहक है और सच्चा है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो कसम खिलाने के लिए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हाँ कहो तुम, और मेरी कसम खा करके कहो, वो रब्बी, मेरे रब की कसम। तो कसम की वजह से भी बात के अंदर में ताकीद पैदा हो जाती है और बात मजबूत हो जाती है। फिर इसके बाद में इन्नहु, इन्न के ज़रिया से भी बात के अंदर में पुख्तगी और ताकत पैदा हो जाती है। लहक्कुन के अंदर में जो लाम है ये भी ताकीद के लिए है। तो कितनी ताकीदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह का अज़ाब बरहक है। दुनिया में अगर न आया, अल्लाह की तरफ से अगर डील हुई तो आखिरत के अंदर में पहुँचने वाला है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और तुम अल्लाह तबारक व तआला को थकाने वाले नहीं हो, तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। यानी दुनिया के अंदर में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर अज़ाब नाजिल किया तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अल्लाह ताला को आजिज़ कर दो और अल्लाह ताला को भगा दो, या अज़ाब के फरिश्ते जो अज़ाब लेकर दुनिया में आवें उनको भी तुम थका दो और उनको भी भगा दो और उनके ऊपर में तुम गलबा पा लो। इसी तरीके से अगर दुनिया में अज़ाब से बच गए और आखिरत के अंदर में अगर अज़ाब आ गया तो आखिरत के अंदर में भी अल्लाह के अज़ाब को तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो। वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत, और अगर हर नफ्स के लिए कि जिस नफ्स ने भी जुल्म किया, यानी कुफ्र किया और शिरक किया, दुनिया के अंदर में अल्लाह के अज़ाब से किसी हिकमत और मसलहत की वजह से बच गया, लेकिन आखिरत के अज़ाब के अंदर में जब मुब्तला हो गया तो आदमी अपने आप को अज़ाब से बचने के लिए और अज़ाब से बचाने के लिए दुनिया के अंदर में या तो शफाअत, सिफारिश काम लगती है, कोई जग काम लग गया, या दुनिया के अंदर में रुपया पैसा दे करके अपने आप को सज़ा से बचा लिया। आखिरत के अंदर में भी अगर ये इंसान कि जिसने कुफ्र किया, शिरक किया, अगर वो अपनी ज़ात को और अपनी जान को अल्लाह के अज़ाब से बचाना चाहे और अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए मा फिल अर्दी, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर में है, लब्तदत बिही, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर में है वो फ़िदिये के तौर पर देकर अल्लाह तबारक व तआला से
अपने आप को अजाब से बचाना चाहे तो भी वो बचा सकता नहीं है। यानी दूसरी जगहों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान अगर पूरी जो जगह खाली है ये सोने से अगर भर दी जाए और सोना भर करके अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से अपने आप को बचाना चाहे तो ये दुनिया भर का सोना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। वो असर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, दुनिया के अंदर में तो अज़ाब की जल्दी मचाते थे, लेकिन जिस वक्त क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर में जब अल्लाह ताला का अज़ाब देख लेंगे तो अपनी नदामत को छुपाएंगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर में तकब्बुर करते थे और अज़ाब का मुकाबला करने के लिए जल्दी मचाते थे, तो वहाँ पर असर्रुन नदामत, नदामत को छुपाएंगे, पोशीदा रखेंगे। लम्मा रअउल अज़ाब वक़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्ति, मैदान हश्र के अंदर में उनके दरमियान के अंदर इंसाफ के साथ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और इन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नसीहत फरमाते हैं, अला सुनो, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दी, बेशक अल्लाह ही के लिए मिल्कत है वो सारी चीज़ों की जो आसमानों के अंदर में हैं और वो सारी चीज़ें जो ज़मीनों के अंदर में हैं। अला सुनो, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का वादा बरहक है, सच्चा है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, कब्र के अंदर में सवाल का जवाब देना है, मैदान हश्र के अंदर में हिसाब और किताब देना है। वअदल्लाहि हक़्क़ुन, जन्नत है, जहन्नम है। वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन लोगों में अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो जानते नहीं हैं। हुवा युहयी व युमीत, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो हयात देती है, व युमीत और वफ़ात देती है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सबको और तुम तमाम को लौटाया जाएगा। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तज़किरा फरमाया है, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसके अंदर में कुरान पाक की सिफ़ात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। आइंदा कल अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह।